104 کا بخار ہے، تمہیں ہوتا تو تم سے پوچھتا۔ باتیں مت بناؤ، جا کے سوپ بنا کے لاؤ میرے لیے۔ ہم ہوٹل میں ہیں نا مرزا جی، گھر پہ تو نہیں ہیں۔ اب ہوٹل والوں کو آرڈر کریں گے تو وہ کھانا لائیں گے نا۔ ارے اسی لیے میں سیر سپاٹے کے خلاف ہوں، جیب اور پیٹ دونوں پہ نقصان ہوتا ہے۔ خیر یہ بتاؤ، ابھی کہاں چھوڑ کے آئی ہو، کس کے پاس؟ ابھی تو نینی کے ساتھ ہے، ویسے بھی اس کے سونے کا ٹائم تھا۔ اچھا آپ بتائیں گھر میں سب کیسا ہے، کیا چل رہا ہے؟ وہی سیم روٹین، تمہارے پاپا آفس، زارون کبھی گیسٹ روم میں کبھی اسٹڈی میں۔ کیا مطلب سارون اور موہنی کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ اب ہوگی بھی نہیں۔ ہمارا سارون کو بھی نا جان چھڑا لینی چاہیے، کیوں لٹکا کے رکھا ہوا یہ معاملہ ابھی تک؟ ڈیورس دے اسے، فارغ کرے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک تم مجھے دل سے معاف نہیں کر دیتے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں معافی کے بجائے طلاق دے کر گھر بھیج چکا ہوں۔ بس کر دو زارون، یہ اس لفظ سے نا مجھے چڑ ہوتی ہے۔ آخری خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے دادا کی پرانی کتاب کے اندر ایک بند لفافہ ملا۔ لفافے پر صرف اتنا لکھا تھا، یہ خط اس وقت پڑھنا جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ عادل نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں شدید بارش ہوئی اور ایک پل ٹوٹ گیا۔ لوگوں کا شہر سے رابطہ ختم ہو گیا، سب پریشان تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جائے۔ عادل کو اپنے دادا کا خط یاد آیا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ خط میں لکھا تھا، جب راستہ بند ہو جائے تو صرف راستے کا انتظار مت کرنا، نیا راستہ تلاش کرنا، اور اگر اکیلے مشکل لگے تو لوگوں کو ساتھ لے لینا۔ عادل نے گاؤں والوں کو جمع کیا، سب نے مل کر پرانے پہاڑی راستے کی صفائی شروع کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک متبادل راستہ کھل گیا۔ لوگ شہر جا سکے، ضروری سامان واپس لائے اور گاؤں کی مشکلات کم ہونے لگی۔ عادل نے خط دوبارہ پڑھا اور مسکرا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ دادا نے اسے صرف ایک خط نہیں دیا تھا بلکہ مشکل وقت میں فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں والوں نے ٹوٹے ہوئے پل کی جگہ ایک مضبوط پل بھی بنا دیا۔ پل کے قریب ایک تختی لگا دی گئی۔ راستے بند ہو سکتے ہیں مگر امید کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سبق: مشکل وقت میں مایوس ہونے کے بجائے حل تلاش کرنا اور دوسروں کو ساتھ ملانا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ستارہ۔ آخری خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے دادا کی پرانی کتاب کے اندر ایک بند لفافہ ملا۔ لفافے پر صرف اتنا لکھا تھا، یہ خط اس وقت پڑھنا جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ عادل نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں شدید بارش ہوئی اور ایک پل ٹوٹ گیا۔ لوگوں کا شہر سے رابطہ ختم ہو گیا، سب پریشان تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جائے۔ عادل کو اپنے دادا کا خط یاد آیا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ خط میں لکھا تھا، جب راستہ بند ہو جائے تو صرف راستے کا انتظار مت کرنا، نیا راستہ تلاش کرنا، اور اگر اکیلے مشکل لگے تو لوگوں کو ساتھ لے لینا۔ عادل نے گاؤں والوں کو جمع کیا، سب نے مل کر پرانے پہاڑی راستے کی صفائی شروع کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک متبادل راستہ کھل گیا۔ لوگ شہر جا سکے، ضروری سامان واپس لائے اور گاؤں کی مشکلات کم ہونے لگی۔ عادل نے خط دوبارہ پڑھا اور مسکرا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ دادا نے اسے صرف ایک خط نہیں دیا تھا بلکہ مشکل وقت میں فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں والوں نے ٹوٹے ہوئے پل کی جگہ ایک مضبوط پل بھی بنا دیا۔ پل کے قریب ایک تختی لگا دی گئی۔ راستے بند ہو سکتے ہیں مگر امید کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سبق: مشکل وقت میں مایوس ہونے کے بجائے حل تلاش کرنا اور دوسروں کو ساتھ ملانا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ستارہ۔ آخری خط۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے دادا کی پرانی کتاب کے اندر ایک بند لفافہ ملا۔ لفافے پر صرف اتنا لکھا تھا، یہ خط اس وقت پڑھنا جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ عادل نے خط سنبھال کر رکھ لیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں شدید بارش ہوئی اور ایک پل ٹوٹ گیا۔ لوگوں کا شہر سے رابطہ ختم ہو گیا، سب پریشان تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جائے۔ عادل کو اپنے دادا کا خط یاد آیا۔ اس نے لفافہ کھولا۔
खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पुल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पुल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पुल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था।
कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने खत दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक खत नहीं दिया था बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीका सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने खत दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक खत नहीं दिया था बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीका सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने खत दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक खत नहीं दिया था बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीका सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था,
ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया।
सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता।
सबक, मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा, आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खुल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक, मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा, आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खुल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने खत दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक खत नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक, मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा, आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खुल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने खत दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक खत नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक, मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा, आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया।
सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था, बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा। आखिरी खत। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने खत संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का खत याद आया। इसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना, और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी।
आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गाँव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आदिल को अपने दादा का ख़त याद आया। इसने लिफाफा खोला। ख़त में लिखा था, जब रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ रास्ते का इंतज़ार मत करना, नया रास्ता तलाश करना। और अगर अकेले मुश्किल लगे तो लोगों को साथ ले लेना। आदिल ने गांव वालों को जुमा किया। सबने मिलकर पुराने पहाड़ी रास्ते की सफाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक मुतबादिल रास्ता खल गया। लोग शहर जा सके, ज़रूरी सामान वापस लाए और गांव की मुश्किलात कम होने लगी। आदिल ने ख़त दोबारा पढ़ा और मुस्कुरा दिया। इसे एहसास हुआ कि दादा ने उसे सिर्फ एक ख़त नहीं दिया था बल्कि मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने का तरीक़ा सिखाया था। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने टूटे हुए पल की जगह एक मजबूत पल भी बना दिया। पल के करीब एक तख्ती लगा दी गई। रास्ते बंद हो सकते हैं मगर उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता। सबक: मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय हल तलाश करना और दूसरों को साथ मिलाना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। सितारा सितारा। आखिरी ख़त। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताब के अंदर एक बंद लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये ख़त उस वक्त पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। आदिल ने ख़त संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में शदीद बारिश हुई और एक पल टूट गया। लोगों का शहर से राब्ता ख़त्म हो गया। सब परेशान थे और किसी को समझ